Assalamu alaikum, my dear friends. Me, Muhammad Irfan Akhil Chaudhary, at the channel of Scholar Academy Grammar. The topic of the day is Vesper theory, valence shell electron pair repulsion theory. हम चैप्टर नंबर 6 में डिफरेंट टर्म्स पढ़ने के बाद लीवर स्ट्रक्चर को डिस्कस करके आए हैं। लीवर्स कंसेप्ट में हमने जस्ट डॉट क्रॉस फार्मूला को ज़हन करना होता है। डॉट क्रॉस फार्मूला मिसाल के तौर पे हम लीवर स्ट्रक्चर में सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये बॉन्डिंग करना चाहते हैं तो ये इनके इलेक्ट्रॉन्स इनके दरमियान में है। Why we need the modern theories? Why we need the valence shell electron pair repulsion theory? To explain this term, why we need the modern theories, we say that Lieber's concept is oversimplified. It gives only the concept of bonding formation, but as we know that many properties, physical properties as well as chemical properties, depends upon the structure of a molecule. If we have to know the complete behavior of a molecule, then we have to know about the structure of molecule. But the Lieber's concept is oversimplified. It gives only the bond formation and does not tell us about the structure of molecule. So we need an extra theories, we need some modern theories which will explain the different structure of the molecules. First of all, valence shell electron pair repulsion theory, then valence bond theory, then molecular orbital theory. Three theories will be discussed in this chapter. There are some other theories like crystal field theory and ligand field theories. These are only for the complex molecules and it is beyond the scope. So we will discuss only here valence shell electron pair repulsion theory. VBT means valence bond theory. MOT means molecular orbital theory. First of all, we will discuss about the valence shell electron pair repulsion theory. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। सिडवर्ट कैंपॉल ने 1940 में कंसेप्ट दिया। क्या कंसेप्ट देते हैं? जो बेस बना वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की जो बेसिस हैं वो प्रोवाइड करने वाले साइंटिस्ट ने जो बेसिक कंसेप्ट दिया, उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल एटम के गिर्द लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो हैं ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करते हैं। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द सेंट्रल एटम डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। दिस इज द बेस गिवन बाय टू साइंटिस्ट सिडवर्ट एंड पॉल इन 1940। इसी बात को बेस बनाते हुए नाइलहोम एंड जिलिस्पी ने अपनी वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को पेश किया, जिसका हम कहते हैं बेसिक कंसेप्ट क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोथ लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करते हैं? बोथ लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर ऑफ अ central atom remains at a maximum distance from each other to avoid the repulsion between them. That is the basic principle, that is the basic assumption of valence shell electron pair repulsion theory. तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के डिफरेंट पॉइंट जो हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि बोथ लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर determine the geometry of the molecules. Both lone pair as well as bond pair determine the geometry of molecule. Point number 2. Electron pairs of the central atom remains at a maximum distance from each other to minimize the repulsion. Electron pairs of the central atom remains at a maximum distance from each other to minimize the repulsion between them. Third point,
lone pair occupy more space. Lone pair occupy more space. हम इसकी रीजन पेश करते हैं कि लोन पेयर ज्यादा जगह क्यों घेरता है। सबसे पहले पता होना चाहिए लोन पेयर मीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले रहे हो नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एटम अट्रैक्ट कर रहा होता है। लोन पेयर्स आर ओनली अट्रैक्टेड बाय वन न्यूक्लियस and bonding electrons are attracted by two nuclei. Bonding electrons are fixed between the two nuclei, due to which they provide the minimum repulsion in the surrounding. But in the case of lone pair or non-bonding electrons, they are attracted only one-sided, only with one nuclei, so they can provide the more repulsion in the space, more space occupy करने की कोशिश करते हैं। As a result, जहां पर भी लोन पेयर आएंगे वहां पर ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, जहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पर कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अगर इसी को हम तरतीब से लिखते हैं तो हम कहते हैं कि ज्यादा अट्रैक्शन किस किस के दरमियान में होगी। अगर लोन पेयर है तो यहां पर अट्रैक्शन सबसे रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद लोन पेयर की रिपल्शन है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और सबसे कम रिपल्शन होगी बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं 2 electrons as a double bond and 3 electrons as a triple bond having a greater charge density occupy more space provided the greater repulsion, but behave like a single pair of electron when we are going to consider the number of bonding electrons or lone pairs। मीन्स के सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, जब हमने मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को डिटरमिन करना है तो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को डिटरमिन करने के लिए डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ओनली एक पेयर के तौर पे ही लेते हैं। जब मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के लिए हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स कंसीडर कर रहे होते हैं। बोथ डबल बॉन्ड ऑफ 2 electronic pair of double bond and 3 electronic pair of triple bond occupy the more space because they have a greater charge density, but behaves like a single pair of electron when we are going to determine the geometry of the molecule. There are 4 assumptions on the basis of which we can determine the geometry of molecule, that is the basic 4 points of valence shell electron pair repulsion theory. अब इन्हीं पॉइंट्स को बेस बनाते हुए हम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूल्स AB2 type molecule. A is the central atom, B is the second atom. To remain at a maximum distance, they will make 180-degree angle. इसकी अगर हम मिसाल देना चाहें, हम कहते हैं हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, ये हमारे पास हो गए AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स। अब हम डिस्कस करते हैं AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स को। AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स में अगर हम A को सेंट्रल एटम कंसीडर करते हुए दरमियान में ले लें तो ये तीनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाने की कोशिश करेंगे। अगर ये तीनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाएंगे तो ये जो स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे ये एक रेगुलर ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर डेवलप होगा, और इनके दरमियान यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री हो जाएगा। इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री हो जाएगा।
मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास ये मॉलिक्यूल है BH3 या BCl3। हम जब बोरोन की बात करते हैं तो बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह बॉन्डिंग में देगा और एज अ रिजल्ट ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा 120 डिग्री ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। सिमिलर स्ट्रक्चर जो है वो BCl3 का होगा, बोरोन उसमें दरमियान में आ जाएगा, क्लोरीन उसे सराउंड करेगा। अब हम मिसाल लेते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग की कि अगर मॉलिक्यूल में 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं लेकिन डबल बॉन्ड बन रहे हैं। हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं SO3 AB3 टाइप मॉलिक्यूल विद मल्टीपल बॉन्डिंग। तो इसमें सेम वैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, सिर्फ क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड की वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है उससे इसकी बॉन्ड लेंथ तब्दील होगी, बाकी स्ट्रक्चर जो है ये भी ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ही रहेगा। इसके अगर हम एक और एग्जांपल देते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग विद वन लोन पेयर, तो हम यहाँ पे सल्फर का ही मॉलिक्यूल ले लेते हैं। इसमें अब एक लोन पेयर बन गया है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ये लेस देन 120 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर एंगल जो है वो लेस देन 120 डिग्री। एंगल हमने किसमें मेजर करना है, यहाँ पे हम एंगल को डिग्री में कर रहे हैं। ये हमारे पास इसकी 2 टाइप हो गई, AB2 टाइप मॉलिक्यूल एंड देन AB3 टाइप मॉलिक्यूल। अब इसकी एक टाइप रह गई है जिसे हम AB4 टाइप मॉलिक्यूल कहेंगे। AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स में अब होना तो ये चाहिए था कि एक मॉलिक्यूल दरमियान में आए और बाकी मॉलिक्यूल इसके साथ इस तरह आ जाएं, 90 डिग्री का एंगल बन जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। क्यों ऐसा ना हुआ? क्योंकि जब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को तरतीब दिया गया, एक एटम दरमियान में आया, बाकी एटम जब इसके गिरता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान के रिपल्शन को मिनिमाइज ना हो सके, रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल जो था, एक मॉलिक्यूल का एटम, एक एटम जो है वो प्लेन से ऊपर निकल गया। जब जहां तक हमने डिस्कस किया है AB2 टाइप मॉलिक्यूल को या AB3 टाइप मॉलिक्यूल को, दोनों केसेस में प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं AB4 टाइप मॉलिक्यूल की तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं रहता, क्योंकि इसमें रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए मॉलिक्यूल जो है वो आउट ऑफ प्लेन निकलता है, जिसकी वजह से वो बाकी मॉलिक्यूल्स को नीचे दबा देता है। एज अ रिजल्ट इनके अंदर जो है स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, उसे हम टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर कहते हैं। AB4 टाइप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को अगर हम फिर डिस्कस करना चाहें तो हम इस तरह से बनाते हैं कि एक मॉलिक्यूल इस तरह, एक मॉलिक्यूल इस तरह, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, और जो मॉलिक्यूल इसमें हमें ऊपर या नीचे की तरफ लेना था उस मॉलिक्यूल को हम यहाँ पर डॉटेड लाइन से जाहिर कर देते हैं। एज अ रिजल्ट यहाँ पर 4 एटम जो हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर 4 एटम्स में से इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो हर एक का 109.5 डिग्री 109.5 डिग्री एंगल एग्जिस्ट करता है। CH4 हम कहते हैं इस मॉलिक्यूल की मिसाल है। हम अगर यहाँ पे इसको हटा दें, इसके यहाँ पे कार्बन लिख दें, ये हमारे पास CH4 मॉलिक्यूल बन जाएगा। CH4 में जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 एंड 2p2, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपना डुप्लेट मुकम्मल करना चाहता है, ये अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना चाहता है। एज अ रिजल्ट इनके अंदर जब बॉन्डिंग होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनने की वजह से टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, और इसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। अब हम बात करते हैं कि AB4 विद नो लोन पेयर। ये हमने देखा कि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसमें कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। अब हम लेते हैं मॉलिक्यूल AB4 टाइप की मॉलिक्यूल है, उसमें एक जो है वो क्या आ गया है, लोन पेयर आ गया है। इस एक लोन पेयर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि AB3 टाइप मॉलिक्यूल, और इसमें एक जो है कि क्या आ गया है, लोन पेयर आ गया है। AB3 बना के इसके ऊपर हम एक लोन पेयर बना लेते हैं।
एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में थोड़ी सी तब्दीली आती है। जब ये ए के साथ एक पॉइंट पर लोन पेयर आ जाएगा तो बाकी यहाँ पर जो एंगल हैं उन एंगल्स में थोड़ी सी तब्दीली आती है। बॉन्ड एंगल उस लोन पेयर की ज्यादा रिपल्शन की वजह से 107.5 डिग्री हो जाता है। अगर हम इसकी मिसाल देना चाहें, हमारे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल है। अमोनिया के मॉलिक्यूल में हम कहते हैं नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। इसके अगर हम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p3 होती है। अब इसके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एज अ लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल पर एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसके स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रॉन एंगल 109.5 नहीं रहता, बल्कि वो कम होकर 107.5 हो जाता है। अब हम इस बात को मजीद आगे लेके चलते हैं। अब हम इस बात को मजीद आगे लेके चलते हैं और हम आगे बात करते हैं AB4, इसमें 2 लोन पेयर आ गए। दो लोन पेयर का मतलब है कि हमारे पास स्ट्रक्चर जो है फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे 2 ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए चाहिए, इसने 2 हाइड्रोजन से ले लिए, बाकी 2 इसके पास लोन पेयर रह जाएंगे। अगर हम ऑक्सीजन का लिखना चाहें, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हैं 1s2 2s2 एंड 2p4। यहाँ पे ऑक्सीजन के ये 6 इलेक्ट्रॉन बन गए। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से पूरे कर रहा है, लेकिन इसके पास अब 2 लोन पेयर बन रहे हैं। लिहाजा टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर में दरमियान में जब ऑक्सीजन आएगी और ये 2 पॉइंट इसके जो हैं वो लोन पेयर ले जाएंगे, तो बाकी जो इसके 2 पॉइंट बचेंगे इनके दरमियान बॉन्ड एंगल मजीद कम हो जाएगा और ये बॉन्ड एंगल मजीद कम होके 104.5 डिग्री यानी कि 104.5 डिग्री बन जाएगा। एज अ रिजल्ट इसका स्ट्रक्चर जो है और बेंड हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम बेंड स्ट्रक्चर भी कहते हैं या वी टाइप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सवाल यहां पर हमसे पूछा जा सकता है कि बताएं कौन सा मॉलिक्यूल जो है उसकी डाइपोल मोमेंट 0 होगी। हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल चाहे AB2 टाइप है, चाहे AB3 टाइप है, चाहे वो AB4 टाइप है, जब तक उसमें कोई लोन पेयर नहीं आएगा, जब तक उसमें लोन पेयर नहीं होगा मॉलिक्यूल एक रेगुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, तब तक चाहे वो AB2 टाइप है, चाहे वो AB3 टाइप है, चाहे वो AB4 टाइप है, हम उसे क्या कंसीडर करेंगे, उसे हम डाइपोल मोमेंट को 0 कंसीडर करेंगे। ओवरऑल एज अ होल मॉलिक्यूल नॉन पोलर कंसीडर होगा। यहाँ पर हम एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात को डिस्कस करते हैं। जैसे हमने CH4 का स्ट्रक्चर लिया है, इसमें हमें नजर आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, मॉलिक्यूल को पोलर होना चाहिए। हम कहते हैं बॉन्ड तो इसके अंदर पोलर हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से बॉन्ड इसके पोलर हैं, बॉन्ड पोलर होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की वजह से डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन जब हम डाइपोल मोमेंट के चारों हिस्सों को इकट्ठा करते हैं, उनका नेट वेक्टोरियल सम लेते हैं, तो वो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाती है। मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर कंसीडर होता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट बॉन्डिंग इज अ पोलर बट द मॉलिक्यूल इज अ नॉन पोलर।